हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू द एपिसोड ऑफ आस्क अजी स्वैग। सॉरी इट्स बिन अ वाइल, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहा था। मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया था फॉर सम रीज़न। बुढ़ा हो रहा हूँ शायद। मौसम बहुत अजीब है, अजीब सी तबीयत हो रही है। मैं कोई एक हफ्ते बाद वीडियो बना रहा हूँ, उसके बावजूद दिल नहीं कर रहा था। बट आज थर्सडे है और आप लोग वेट कर रहे होते हैं, काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आए, लोग मिस कर रहे होते हैं। सो या, और दूसरी चीज़ ये कि देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो शुरू में हमेशा डिस्क्लेमर भी डालता हूँ वीडियोस के। मैं जो भी किसी भी सवाल का जवाब देता हूँ, इट्स नॉट एन एक्सपर्ट ओपिनियन। आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड थेरेपिस्ट। ना ही मैं कोई रिलेशनशिप एडवाइज़र हूँ, ना ही मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई जस्ट ट्राई टू गिव माई ओपिनियन एंड माई परस्पेक्टिव which should I never suggested that it should be taken seriously. It's just another perspective to your existing problem. तो उसको इस तरह ना समझा करें। ना ही मैं कभी इस तरह का क्लेम करता हूँ। सो प्लीज़, जो भी आपने ज़िंदगी में डिसीजन लेना है, वो डिसीजन आपका अपना खुद का होना चाहिए। आपको अपने डिसीजन पे खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट? आई एम जस्ट गिविंग अ पर्सपेक्टिव। एनीवे, so without further ado, let's start today's episode. The first one says, I want to divorce my wife, but she's uneducated. Okay. Assalamu alaikum, Junaid bhai. My name is Tarada. I'm married for 4 years. I married the love of my life, and it was a love marriage, but her parents were very happy as well. So after everybody's razamandi, we got married. अच्छा, सब कुछ सही था. Okay. We spent really great times together, traveled the world, and met some great people. Fast forward to 2 years, our wedding started to stale a bit and we both could not feel any attraction towards each other. We would still, from time to time, try to get closer, maybe once every couple of months. That's a very long time. But it was clear that there was no attraction from both of us. It's been 2 years of us like this, and I could sense that she doesn't like me very much, and to be honest, it's the same from my side as well. In an ideal world, in this scenario, we'd both say Allah Hafiz to each other and find ourselves other more compatible mates. However, since this world is so flawed, especially our Pakistani community, that it's not possible. We both live in Europe के एक मुल्क का नाम लिया, मैं नाम नहीं लूँगा. And like a normal Pakistani family, I'm the only one of us who works and makes income. I work in falana business and make a decent amount. The problem is I want to leave her and let her be so I can at least live my life and find someone else. But she doesn't make any money at all. Since the last 2 years, jokingly, I've hinted her for what will happen if we get separated. But she just laughs and brushes it off. I know without me, she'd hardly make 20 to 30,000 rupees in Pakistan, considering the fact that she'll have to go back after we get divorced because she's on a dependent visa. Currently, she's got all the great things in life and really enjoys her morning coffee in a silver cup. Please guide me on what to do. Should I stay with her just because she can't live by herself? Or should I stop caring and find someone else more compatible? We don't have any kids yet. Thank goodness for that. Yes, thank goodness for that, because लोग खुद मिजरेबल होते हैं और फिर एक बच्चा ले आते हैं ज़िंदगी में और फिर अब 3 लोग मिजरेबल हो जाते हैं, assuming that kid might save the marriage, but that's never the case. Once you fall apart. Nobody can change. It's very weird. अब आप लोगों ने जैसे सुना कि इन साहब की लव मैरिज थी, फैमिली भी खुश थी और सब कुछ सही था, उसके बावजूद थिंग्स फेल अपार्ट विद इन लाइक 2 years. आई डोंट नो मैन, पीपल फॉल अपार्ट. अब देखें, होता ये है, why is it falling apart? Like, why is there no attraction? What is it that you guys are not doing? Do you guys like someone else? Like, आपको कोई और पसंद आ गई है, उनको कोई और पसंद आ गया है? What's going on? I would suggest कि you guys should seek some couples therapy. और मैं ये हमेशा कहता हूँ भाई, couples therapy लें. It's very important. Try to find out where things are lacking. Try to work it out. अगर आपने बिल्कुल ही हिम्मत हार ली है, मैं फिर भी कहूँगा कि कोशिश करें, शायद कोई ना कोई रास्ता निकला है. बिकॉज इट साउंड्स लाइक अ वेरी नाइस फेरी टेल. दुनिया घूमी है, ट्रैवल किया है, सब कुछ किया है. आई एम श्योर द काइंड ऑफ अट्रैक्शन यू हैड फॉर ईच अदर मस्ट हैव बीन अमेजिंग एट सम पॉइंट. मगर वो फिजल आउट हो जाती है, कोई मसला नहीं है. मगर कोई थेरेपी देखें, कपल्स थेरेपी, ट्राई टू फाइंड आउट कि मसला कहाँ से आ रहा है. अगर उसके बावजूद भी फिर भी कुछ समझ नहीं आता, आपको लगता है बिल्कुल सिचुएशन होपलेस है, तो फिर ये आपका मसला नहीं है कि वो पाकिस्तान वापस आके 20,000 कमाए या 30,000 कमाए. देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप किसी के साथ एक सर्टन पॉइंट पे होते हैं ना, तो आपने अगले को इतनी इज्जत दी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी की गर्लफ्रेंड है तो उसने आपको चूज़ किया है एक, तो आप उसी को मलहूज़ खातिर रखते हुए
आप अगले का अच्छा ही सोचते हो कि यार ठीक है मेरे साथ नहीं बनी, लेकिन अब ये भी नहीं ना कि खड्डे में डाल दो, बिल्कुल ऐसे भी नहीं ना, अगले ने आपके साथ टाइम गुजारा, तो यहाँ तो आपने शादी की है, मोहब्बत थी आपको, तो अच्छा ही सोचना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि जी जस्ट बिकॉज थिंग्स हैव फॉलन अपार्ट अब तुम भाड़ में जाओ और तुम्हारा कोई नहीं है, आप फिर भी उसके बारे में अच्छा सोचो, दैट्स जस्ट कॉमन डिसेंसी, राइट। मगर ये कि अब अगर आपको ये फ़िक्र है कि उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की ज़िंदगी में, तो टेक्निकली दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इसकी तैयारी उनके पेरेंट्स ने उनको करानी थी, उनको खुद एहसास होना चाहिए था ज़िंदगी में। मैं इसलिए लड़कियों को कहता हूँ कि भाई अपने आप को आप हमेशा इक्विप्ड रखें। देखें ना, परफेक्ट लव स्टोरी ख़त्म हो गई 2 साल में, क्या गारंटी है? लव मैरिज थी, वरना 90% अरेंज मैरिजेस आते हैं ना, नहीं चल रही होती है, लव थी, ये भी नहीं चली, कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की। तो भाई अपने आप को आप इक्विप्ड रखें, तालीम वालीम पूरी रखें, करियर बना के रखें, ताकि आप इस तरह ना लटक रही हो। अब देखो अगले ने सिर्फ इसलिए लटकाया हुआ है कि यार इसको बेचारी को नौकरी नहीं मिलेगी, खुद भी मिजरेबल रह रहा है। सो यू डोंट हैव टू लिव अ मिजरेबल लाइफ जस्ट बिकॉज समबडी इज नॉट वेल इक्विप्ड। हाँ, आप बिल्कुल अच्छा सोचो, ट्राई टू फाइंड समथिंग बेस्ट फॉर हर, बट एट द एंड ऑफ द डे ज़िंदगी आपकी है, ज़िंदगी एक बार मिलती है भाई, और बहुत लकी हो आप कि मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर आप पैदा हुए हैं, आपको ऐसे सेट ऑफ पेरेंट्स मिले हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल किया कि आप यूरोप के इतने बड़े मुल्क में इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं। बहुत कम लोगों को ये चीज़ें नसीब होती हैं। सो लाइक सारी गुडनेस एक जगह, मगर अगर देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ, यू कैन बी जेफ बेजोस, लेकिन अगर आपके घर में डोमेस्टिक लाइफ आपकी ख़राब है ना, आपकी हर चीज़ ख़राब है, आपका सुकून ख़राब है, पीस ऑफ माइंड ख़राब है, होम जिसको अबोर्ड कहते हैं, जहाँ इंसान सुकून के लिए जाता है, अगर वो उस घर में ही ना घुस सके कि यार मैं जाऊँगा लड़ाई होगी, तो बाहर गाड़ी घुमा रहा है, बस सड़कों पे घूम रहा है, गाने सुन रहा है, तो इससे बड़ी मिजरेबल लाइफ और कुछ नहीं होती। तो नो बडी डिजर्व्स दैट। इट्स जस्ट एज नेचुरल कि यू फॉल अपार्ट। बहुत ज़ोर से मोहब्बत होती है और फिर ख़त्म भी हो जाती है फॉर वट एवर रीज़न, अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है, दोनों साइड से हो जाती है, जैसे कि आपके केस में दोनों साइड से ख़त्म हो गई। अब जब एक चीज़ ख़त्म हो गई है तो बिला वजह उसको खींचना क्यों? हाँ, अगर आपके बच्चे होते तो समझ आता। अगेन आई डोंट इंडोर्स द आइडिया कि बच्चे की वजह से, देखें बच्चों को भी जो है ना, मैं दूसरे केसेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोग साथ रहते हैं बच्चों की वजह से। देखें बच्चों को ये नहीं देखना कि माँ बाप साथ हैं, बच्चों को ये देखना है कि माँ बाप खुश हैं। अब वो खुश साथ हैं या दूर दूर हैं, जैसे भी हैं, बच्चों को मिजरेबल, मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा दिखा के आपने उनको क्या बनाना है? और दुनिया के लिए कि जी बच्चे के लिए हम साथ थे, बच्चों को आपने खुशहाल माँ बाप दिखाने। अब वो माँ बाप चाहे साथ खुश हो या अलग अलग खुश हो, उसमें कोई बात नहीं है, मगर देखें बच्चे की लाइफ ख़राब हो जाती है। तो आपके केस में तो चले बच्चे भी नहीं है, सो यू हैव नो रियल रीज़न टू ड्रैग इट ऑन। मैं फिर कहूँगा कपल्स थेरेपी ट्राई करें, ट्राई टू फाइंड आउट। कहीं ना कहीं देखो, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये देख के, इतनी अच्छी आपकी एक लव स्टोरी है, तो वो अचानक कैसे गाड़ी बंद हो गई, ये मुझे समझ नहीं आया। या तो आपने पूरी बात नहीं लिखी है, या तो आपको कोई और पसंद है। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, ठीक है ना, आई एम नॉट मेकिंग एनी जजमेंट्स। ट्राई टू फाइंड द रूट कॉज, शायद कहीं ना कहीं से स्पार्क निकला है। अब वैसे भी कोविड है, मैं ये भी नहीं कह सकता, चलें आप जिस मुल्क में, वहाँ तो आप ट्रेन पकड़ के दूसरे मुल्क चले जाएँ, थोड़े पहाड़ वहाड़ में चले जाएँ। लोग यहाँ भी ना शादी के बाद सीधा पहाड़ पे चले जाते हैं, सर्दी लगती है ना तो साथ थोड़ा सा चुपक से तो सर्दी का लगना ज़रूरी। खैर जहाँ पे वहाँ भी कम सर्दी नहीं होती, मगर चेंज ऑफ सीनरी वगैरह, आई डोंट नो मैन, ट्राई इट आउट। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो देन लाइक पार्ट वेज इन अ डिसेंट मैनर एंड कम्युनिकेट करें कि लाइक इट्स नॉट वर्किंग आउट, जैसे कि आपने कहा है, यू हिंटेड दैट बिफोर। अब उसको पाकिस्तान में कौन सी नौकरी मिलती है, दैट्स रियली नॉट योर प्रॉब्लम, दैट्स व्हाट आई वुड से। गुड लक मैन, एंड थेरेपी ज़रूर लेना, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, क्यू की ईमेल आई है। Assalamu alaikum Junaid bhai, hope this email finds you well. I started listening to your Ask Anji swag recently and I must admit they're addictive. There has been a question in my mind which I tried searching about over the internet but couldn't find a satisfactory answer. I am 29 and happily married, alhamdulillah. I belong to a family where education is the first priority. We are 4 sisters and my mother has given out her everything to make us independent. Kudos to your mother. She has heard the taunts of society regarding not having a son, but she made sure she made us far more accomplished than the men in her society. Again, जबरदस्त काम। बिना वजह कहता नहीं बेटा नहीं है तुम्हारा, क्या करना था बेटे का तूने, रजिया तेरा क्या काम है, उसका बेटा नहीं है, तू बना के दे दे कोई, पागल है यार, थर्ड क्लास।
माई एल्डेस्ट सिस्टर इज़ अ डॉक्टर विद अ PhD फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन पब्लिक हेल्थ. चेक कर रहे हैं आप. शी इज़ मैरिड एंड सेटल्ड इन मेलबर्न. आई एम द सेकेंड वन, एन इंजीनियर, एंड आई एम सेटल्ड इन इस्तांबुल विद माई हस्बैंड. फैल गई सारी बहनें, ज़बरदस्त. आई एम डूइंग अ मास्टर्स इन नैनो इंजीनियरिंग वेयर एज माई हस्बैंड इज डूइंग अ PhD हेयर. Third one is a textile designer and a freelancer. The youngest one is doing her ACCA. Wonderful family. Lovely to hear this. मुझे खुशी होती है जब लड़कियां जो है ना इतना अचीव करती हैं. और ख़ास तौर पे मतलब देखिए, वो यही कहा जाता है ना कि हमारा मुल्क का जो अभी ये हाल हुआ है, ये हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है, इन ये लेज़ी जनरेशन थी कि इन्होंने ये पैदा किए हैं. मगर मुझे खुशी होती है कि इन लेज़ी पेरेंट्स में ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने वक्त का, हालात का, सोसाइटी का मुकाबला करके और इस चीज़ को बालाए ताक रखते हुए कि भाई लड़का हो या लड़की हो, पढ़ाना तो पूरा है. माशाल्लाह, दे वंडरफुल डूइंग वेल. एंड अब देखिए ना, दुनिया भर में एक मेलबर्न में है, ख़ुद इस्तांबुल में है ये. तो लोग मिलते होंगे, बताते हैं पाकिस्तान अच्छा जी, पाकिस्तान आप नैनो इंजीनियरिंग करिए, पाकिस्तान की लड़की अच्छा है जाता ना इमेज. वरना क्या 15 साल से बम ही फट रहे ना, जैकेट 15 पॉकेट वाली लेके फटते फिर रहे दुनिया भर में. अबे हमें ऐसे एम्बेसडर्स चाहिए भाई दुनिया में. सब रियली प्राउड ऑफ यू गाइज. सिंस मी एंड माई एल्डर सिस्टर आर सेटल्ड अब्रॉड and the younger ones are busy with their studies, my mother feels lonely and depressed, especially in the quarantine period. She's following SOPs strictly as she's a blood pressure patient and 55-year-old. She's not going out much and has a limited social circle. She simply visits my nanny who's bedridden herself. She doesn't want to meet relatives as they are all only interested in gossip and backbiting. My father is also retired, but he has a big social circle to keep him entertained. She's been a homemaker all her life and has only done her intermediate long time ago. She knows very little English and can use a smartphone like any other computer literate 55-year-old housewife. She's an avid reader of Urdu novels and has a subscription to a library. She can get books from them now. She can't get the books from the library due to Corona. Lately, she's been complaining about being bored, depressed, and has nothing to do except house chores. She's tired of redundancy of her life. I think this could affect her mental and physical health. As we all agree, there are no activities or avenues of entertainment or socializing for senior citizens in Karachi. What should a retired person or a senior person do once the children are all established and there's seemingly no responsibilities left? Please note that you're suggesting something for someone who knows very little to no English and may or may not be computer literate. Have a good day. So basically Q का कहना है कि ये 4 बहनें हैं, 2 बाहर रहती हैं, जो 2 यहाँ रहती हैं वो बहुत बिजी हैं पढ़ाई में. वालिद साहब का सोशल सर्कल अच्छा है, वो घूमते फिरते रहते हैं. वालदा जो हैं उन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो इतना ख़ास कोई सोशल सर्कल नहीं है. और रिलेटिव्स वो अवॉइड करती हैं गॉसिपिंग की वजह से, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वालदा के पास यानी इनकी नानी के पास जाती हैं, मगर वो भी बेड रिडन है. और कोरोना के टाइम में तो इट्स नॉट बेस्ट टू बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद एल्डरली पीपल. तो वो बोर हो रही हैं. अब वो किताबें पढ़ती हैं, नॉवेल्स वगैरह, सब्सक्रिप्शन उन्होंने कराई हुई है, लेकिन लाइब्रेरी बंद है तो आ नहीं रही. तो पहले तो आप मुझे ये बताएं, अगर उनको कोई ख़ास किताबों की ज़रूरत है और कराची में ही है तो मैं पहुंचवा दूंगा, कोई मसला नहीं है. वट एवर शी लाइक्स टू स्टडी, आई विल कीप हर एंटरटेन एज मच एज आई कैन. मगर ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं, मैं कितनी बार चला जाऊंगा किताबें लेके, ठीक है ना. अब मसला ये है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोना का टाइम है. माई फादर 14 अगस्त को निकले लुधियाना से, ठीक है, ट्रेन में बैठ के इधर उधर कर करके 19 अगस्त 1947 को वो उस घर में पहुंचे जहाँ पे हम हमेशा रहे. राइट, मैं भी ज़िंदगी के 27 साल उसी घर में रहा. और फिर 2015 में चूँकि वो घर छोटा था और भाई की शादी होनी थी, तो दैट वाज़न्ट बिग इनफ टू हैव अ न्यू पर्सन देयर. तो फिर फाइनली हम मूव आउट हुए. राइट, उनकी सारा बचपन, सारी जवानी और बुढ़ापा भी बहुत सारा उसी घर में गुजरा, उसी मोहल्ले में, उन्हीं दोस्तों में. अबे दरख्त भी वही थे भाई, वही दरख्त थे. और वहाँ पे इतना शोर व गुल, हलचल. आपने अक्सर मेरी स्टोरीज में देखा होगा, मैं पुराने मोहल्ले जाता हूँ, वो लाइफ ही अलग है. यहाँ पे तो भाई बिल्कुल ही पता ही नहीं है बाहर कौन रहता है इस घर में. मैं इस गली में 3 साल से हूँ, मुझे 2 घरों के अलावा कुछ नहीं पता यहाँ कौन रहता है ही नहीं, चक्कर ही नहीं है आजकल का. सो वो वाली लाइफ छोड़ के अब देखें ना, ये पेरेंट्स का यही होता है कि वो बड़े सलीके से बच्चों को पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, एक अच्छा इंसान बनाते हैं, और फिर एंड में बेचारे खुद अकेले रह जाते हैं. दैट्स अ वेरी ग्रिम रियलिटी ऑफ लाइफ. ये लाइफ का एक सर्कल है और ये ऐसे ही चलता है.
क्योंकि अब आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, आपकी प्रायोरिटी आपके बच्चे हैं, ठीक है ना। पेरेंट्स तो हैं ही हैं, लेकिन अब ये कि इंसान इसी तरह जो है ना आगे आगे निकलता रहता है, तो ये कंसर्न आता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह माय पेरेंट्स, अगर मैं उनकी बात करूं, उन्होंने कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं होने दी, ना कोई शुगर, ना कोई ब्लड प्रेशर, ना कोई भी बीमारी, कभी भी। अल्लाह का शुक्र है, बस नज़ला ज़ुकाम खांसी के अलावा कुछ सुना ही नहीं। मैक्स टू मैक्स पेट ख़राब, राइट। खाने के शौकीन है, कश्मीरी लोग हैं, राइट। यहाँ जैसे मूव हुए, एक तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस में बहुत फ़र्क देखा मैंने विद इन द स्पैन ऑफ 2-3 ईयर्स, राइट। और सेहत भी एकदम गिर गई, ब्लड प्रेशर का भी इशू हो गया, शुगर भी हो गई अम्मी को, राइट। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपको याद होगा, कि वो एक साहब थे जो बीमार थे और फॉर वट एवर रीज़न उनको एक दोस्त के पास छोड़ना पड़ा, और वो रोज़ाना उसको विज़िट करते थे। पता चला जी अब्बू जी बीमार नहीं, तो उनको बात करने वाला कोई चाहिए था, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। मैं सुबह जानबूझ के नाश्ता करके 1 घंटा घर पे बैठता हूँ अम्मी अब्बू के साथ, आई टॉक विद देम, क्योंकि उस टाइम वो भी फ्रेश होते हैं, एंड देन वी जस्ट टॉक अबाउट वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, या काम से रिलेटेड, या उनकी कोई पुरानी बातें उनको बहुत पसंद है ना। वो भूल भी जाते हैं बहुत बार कि उन्होंने ये बात हमें बताई भी, अब फिर भी चुप करके सुन लेते हैं। सो वो उनकी एक वो होती है एंटरटेनमेंट। तो बिकॉज ऑफ कोविड, सो वो अब्बू क्या करते थे, हर मंडे वो जाते थे पुराने मोहल्ले, ही वुड मीट हिज फ्रेंड्स, और हर दूसरे तीसरे हफ्ते पता चलता था कि उनका एक दोस्त कम हो गया। और मैं इस तरह भी सोचता था कि यार इट मस्ट बी सो डिप्रेसिंग, हमारे ऊपर भी ये टाइम आ ही जाएगा इवेंचुअली कि लाइक आवर फ्रेंड्स विल स्टार्ट टू डाई, एक एक करके कम होते जाएंगे, पता लगा अरे वो भी चला गया। सो लाइक वो ज़ाहिर है वो डिप्रेशन ऐड करता है। और फिर वो हफ्ते में एक ही दिन जाते थे, एंड ही वुड हैव अ गुड टाइम। अब बिकॉज ऑफ कोरोना वो शुरू के 4 महीने बिल्कुल मैंने उनको बोला कि आप नहीं जाएं बिकॉज इट्स नॉट सेफ़, और उन्होंने फॉलो किए, सो प्लीज़ घर पे ही रहे। फिर जब थोड़ा सा ग्राफ नीचे आया, मैंने फिर बोला कि ठीक है आना जाना करें, बहुत उन्होंने इन्जॉय किया, बहुत अपलिफ्टिंग। फिर जब से ये दोबारा वेव हुई है, मैंने फिर कोई 3-4 महीने हो गए, एंड आई कैन सी वो ही सिवियरली बोर्ड। मतलब कितना ARY देख लेगा यार, कितना जियो देख लेगा, कितना अखबार पढ़ लेगा, राइट। यू नीड ह्यूमन कनेक्शन। अब ये टाइम ही ऐसा है कोविड का कि इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, रिश्तेदार भी आए तो दूर दूर बैठना पड़ता है। सो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिस इज़ वेयर योर डैड हैज़ टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज ही नीड्स टू रियलाइज कि ठीक है उनका तो सोशल सर्कल है, मगर बीवी को भी अब साथ अगर ले जा नहीं सकते, चलो ठीक है जी चाय के होटल पे सारे अंकल मिल रहे हैं तो वहाँ तो बेगम का जाना नहीं बनता, मगर ये कि किसी ना किसी तरह कीप हर एंटरटेन्ड, बिकॉज ही नीड्स टू रियलाइज़ कि अब बच्चे चले गए। होता यही है, मैं भी अपनी बीवी को यही बोलता हूँ कि यार अभी बच्चे छोटे हैं, जब तक छोटे हैं ये हमारे पास है, एक दिन ये चले जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू एंड मी, वी ओनली हैव ईच अदर, राइट। पेरेंट्स हैं, अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, बहन भाई हैं, उनकी अपनी फैमिलीज़ हैं, उनके अपने गोल्स एंड डायरेक्शंस हैं, अपने अपनी शहरों में रहते हैं, हम अपने अपने मुल्कों में रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू एंड मी आर फॉर ईच अदर, और कोई नहीं हमारा। सो दिस इज़ समथिंग योर डैड हैज़ टू रियलाइज एंड लाइक कीप हर इन द लूप सम हाउ। किताबें भी वो कितनी पढ़ लेंगी, ड्रामे भी वो कितने देख लेंगे। और ये बात मैं हमेशा से कहता हुआ हूँ कि कराची में, पाकिस्तान में बच्चों के और बूढ़ों की एंटरटेनमेंट कोई है ही नहीं। क्या है, आपके नेफ्यूज़ आए हैं अमेरिका से 2 हफ्ते के लिए, डिज्नीलैंड छोड़ के यहाँ आए, कहाँ लेके जाओगे? चंकी मंकी, अलादीन पार्क, नस्वार वाले पानी में स्विम करेगा, नस्वार नाक में जाएगी, दिमाग ही उड़ जाएगा बच्चे का, फ्यूज़ उड़ जाएगा। अच्छा और कहाँ, और कौन सी जगह है भाई, कौन सी जगह है? अस्करी पार्क, वहाँ झूला गिर गया था, और बोलें और कहाँ लेके जाएंगे? कराची की बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं विहाड़ी, रहीम यार खान, बहावल नगर की मैं कराची की बात कर रहा हूँ। कहाँ लेके जाएंगे? सीव्यू लेके जाएंगे? हाँ, सफारी पार्क में वो बेचारे जानवरों का हाल बुरा हुआ है, मोबाइल अलग छिन जाते हैं, वहाँ सफारी हो जाती है आपके साथ, ठीक है ना। तो है ही नहीं, बूढ़ों के लिए भी नहीं है। रह के थोड़े बहुत पार्क थे, वो भी चाइना कटिंग करके अल्ताफ भाई ने भेज दी। पॉलिटिकल बात हो गई। सो लाइक ये है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम हमारे यहाँ बूढ़ों की। अच्छा दूसरा, हमारे यहाँ ना बूढ़ों के बारे में ये भी कहते हैं कि जी अब तो बस कब्र में टांगे अब अल्लाह अल्लाह करें, यानी दे आर नॉट अलाउड टू हैव फन। ज़रा सा कोई बूढ़ी भी शादी में थोड़ा सा हल्का सा झूम लिया, आए हैं बूढ़ी भी, इनको शर्म नहीं आ रही,
एक टांग कवर में, दूसरी केले के छिलके में नाच रही है मटक मटक के। तो हमारे ये भी, हमारा कल्चर जो है ना, इट हैज़, अब मैं इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा, मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ। इट्स सो एंटी एंटरटेनमेंट। क्या आप खुश नहीं हो? आपको खुशी ना देनी है, ना होने देना है आपको, ना होते देख सकते हैं। अभी न्यू ईयर गुजरा है, अंधेरे पड़े थे शहर में। अबे दुनिया के न्यू ईयर में भाई आसमान चमक रहा होता है। छोटी सी एंटरटेनमेंट होती है, 15 मिनट का फायरवर्क होता है यार, कितने का हो जाता है? 1 करोड़ का, 2 करोड़ का चंदा जमा करके खुद ही कर लेते हैं हम लोग यार। यहाँ पे शहर बंद, नहीं भाई देनी नहीं एंटरटेनमेंट। हालांकि हर घर में पार्टियां भी हो रही हैं। जो अमीर है ना, अमीर दबा के पार्टी करो, और गरीब भी दबा के पार्टी करता है। मिडिल क्लास ये के पास कुछ है ही नहीं, बस तू कमा के टैक्स देता रहे और तू बस अल्लाह अल्लाह कर, और तेरे लिए कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही हिसाब किताब है। तो वेर सो एंटी एंटरटेनमेंट। अभी हम लोग क्या, यहाँ से 12 लड़के उठ के उरमारा गए, वहाँ जाके भी हम कबाब पका रहे थे, जो कि हम यहाँ कर सकते थे। इतनी दूर जाके इतना रिस्क लेके, लाइक अंधेरा था, डर लग रहा था, कबाब बना रहे कोई, और क्या करें एंटरटेनमेंट। सो या मैन, ये तो मसला है। अब एक तो अपने आपके फादर को थोड़ा सा इस चीज़ को नोटिस लेना चाहिए। दूसरा, आपकी जो बहनें यहाँ पे हैं, दे हैव टू लाइक मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, बिकॉज ये फिर ये वाला डिप्रेशन जो है ना, और ये कोविड ने तो ये किया है, इट हैज़ पुट अ लॉट ऑफ पीपल इन डिप्रेशन, स्पेशली द ओल्ड पीपल, बिकॉज दे सी देयर फ्रेंड्स डाइंग ऑल द टाइम। न्यूज़ फीड में जाएँ, इन्ना लिल्ला ही कर रहे हो, सुबह उठो इन्ना लिल्ला की एक चेन चल रही होती है, ये भी गया, ये भी गई, ये भी गई, ये भी गया, यही हो रहा होता है। सो राइट, अनसर्टनिटी यार, किसी को हाथ नहीं लगाना, ये नहीं लगाना, तो ऑब्वियसली इट हैज़ मेड, मैं, आप यकीन करें, मैं कुछ देख रहा होता हूँ ना नेटफ्लिक्स पे या कोई पुरानी फिल्म, मैं डर जाता हूँ, इसे टच कैसे कर लिया उसको, ये वो गले कैसे मिल रहे हैं, ओए ये क्या कर रहा है। फिर याद आता है भाई ये तो 3 साल पहले शूट हुई है। 1 साल में हमारी ब्रेन वॉशिंग ऐसी हो गई है। सो लाइक हम तो चले जवान हैं, चीज़ समझते हैं, मगर लाइक सम पीपल लाइक योर मदर और पीपल लाइक आवर पेरेंट्स, उनके लिए चीज़ें एब्जॉर्ब करना मुश्किल है, बट इवन दे आर फॉलोइंग victim to this. So I would suggest your father needs to take this into account. Take her out for a walk शाम में। I'm assuming आप अगर किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे पार्क्स वार्क्स हैं, शाम में 5 बजे, असर के बाद, असर से मगरिब वाला पीरियड अच्छा है, लोग नज़र आते हैं, बच्चे खेलते हुए अच्छे लगते हैं। सीनियर सिटीजन्स का तो ये, अदरवाइज़ कोई एंटरटेनमेंट नहीं है यहाँ पे। क्या एंटरटेन, तंबोला खेलेंगे, वो क्लब मेंबरशिप हर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता, जो यहाँ पे सोसाइटी ख़वातीन करती हैं। तो रह दे कि भाई हमारे यहाँ तो ये बोलते हैं जी, मुसल्ले पे बैठे रहो, तस्बीह के दाने गिनते रहो, भाई यही एंटरटेनमेंट है अब आपकी। अब जो होगा वो आगे मिलेगा। तो औरत की ज़िंदगी ऐसी बर्बाद, घूमने जाना है शौहर के साथ जाना, जब शादी हो जाए शौहर के साथ जाना, शौहर मिलता है, शौहर जो है जौहर नहीं लेके जाता शौहर के साथ नथिया गली का जाएंगे, वो अगली गली नहीं लेके जाता, नथिया गली तो दूर की बात। फिर थोड़ा बहुत चले जी, बच्चे जवान हो जाएंगे, बच्चे हमें थोड़ी याशियाँ करा देंगे, थोड़ा घुमा फिरा लेंगे, बच्चे अपनी बच्चियाँ ले आते हैं, ये अब तो ये हैं, अब आप मुसल्ले पे बैठे, अब अगली दुनिया में आपने सफ़र करना है ये तो लाइफ है। औरतों की लाइफ बहुत 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 बुरी है, हमारे औरतों की लाइफ, लोग समझते नहीं हैं। मेल प्रिविलेज ना, बिकॉज वी हैव नेवर बिन थ्रू दीज प्रॉब्लम्स, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कि जी यहाँ नहीं निकलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बड़ी है प्रॉब्लम्स। सो या आई फील, प्लीज़ लेट मी नो क्यों अपनी अगली ईमेल में, इफ शी नीड सम नॉवेल्स या कोई बुक्स वगैरह, आई बी हैप्पी टू डिलीवर टू हर। सो या ख्याल रखिएगा। हाँ जी, द थर्ड वन, कोल्ड फीट ओवर अ 4-year-old रिलेशनशिप। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, होप यू डूइंग वेल। आई बीन लिसनिंग टू योर पॉडकास्ट क्वाइट रेगुलरली, फाइंड देम informative and helpful. Usually I'm not a follower, but listening to you over a long time has made me seek your advice. अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। Getting down to the brass tacks, I have been seeing a girl for quite some time now. It is quite expected of us to get married and things have been smooth. She has been a loyal friend, my support system in all sorts of times. Alhamdulillah, we both are from well-to-do families, so money has never caught her attention. To be honest, these are hard to find traits in the modern era, and I applaud it. However, there is something that has been bugging me despite everything being on track. I feel that maybe I have lost interest in this relationship which has spanned nearly over 4 years. I don't know how to explain it, but it may be our mindset differ. She might not have a slight hint about it. Unlike most of the cases, I would not complain anything about her because she has always acted up to the mark. It is just that I don't know if I want to be with her anymore. In the coming year, we are expected to get things official, and God, it has already started giving me second thoughts. I might be sounding ungrateful here, but I want the best for both of us. I can't even ask her to leave. She doesn't deserve that.
Maybe I don't want that either. Maybe it's just that I'm getting cold feet. Should I go for someone who might meet, fall for in the future, or settle for someone who loves me passionately? The confusion has been encompassing for a long time now, so I really need advice from someone I can trust. All right. ये साहब हैं जी, 4 साल से ही सीइंग समवन, और लड़की भी बहुत अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, दोनों का बैकग्राउंड फाइनेंशियली स्टेबल है, कोई पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक जा रहा है, वो हर चीज़ सही करती है. अब इस साल चीज़ें ओके होनी है, शादी की तरफ जानी है, तो इनके ज़रा पैर ठंडे हो रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद मैं पीछे हट जाता हूँ. आई एम गेटिंग कोल्ड फीट. अब आप जो ये कह रहे हैं शुड आई गो फॉर समवन एल्स, इस बात की क्या गारंटी है कि उसको आप 4 साल लटका के उसको भी आप ये बात नहीं बोलेंगे. दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम विद गाइज, स्पेशली इन पाकिस्तान. आई डोंट नो गाइज आर एनीवेयर एल्स, तो मैं तो यहीं की बात करूँगा. कन्फ्यूजन बहुत है लड़कों में, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है. डिसीजन लेना नहीं आता, या अगर लेते हैं तो उस पर खड़ा नहीं होना आता. कायद आज़म का कॉल है ना, एक बार सोच के लो और जब ले लो तो उस पर कायम रहो. ये चीज़ बड़ी लैकिंग करती हैं. और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. टोपी ड्रामे, असल में हमारा जो पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है ना सोसाइटी का, टोपी ड्रामे पे खड़ा है. मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, यहाँ से बात शुरू होती है, और फिर जो अनसर्टेनिटी है ना, वो फिर हर चीज़ में छलकती है आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में, राइट. अगर आप ढीले ढाले हैं दोस्ती यारी में, तो आपके काम में भी आप ढीले ढाले से ही होंगे, रिश्तों में भी ऐसे ही होंगे. एनीवे, सो यार उस बेचारी का क्या कसूर, उसको आपने 4 साल लटकाया. अब आप कुछ भी कह के कि जी मुझे अब समझ नहीं आ रहा, मैं कहीं और जा रहा हूँ. अब आप कहीं और जाएंगे, वो भी आपको मिलेंगी, वो भी अप टू द मार्क होंगी, सब कुछ सही करेंगी, फिर 4 साल बाद आपको लगेगा शायद इसमें भी कोई कमी है. ऐसे लोग जो होते हैं ना, डोंट टेक इट पर्सनल, बट ये है, ऐसे लोग कभी भी सेटल नहीं होते, बिकॉज वो फिर हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश में रहते हैं. देखिए, यू डोंट हैव टू फाइंड, यू आर नॉट सपोज टू फाइंड द बेस्ट पर्सन that exists. You're supposed to find the best person that can be compatible with you. इन दो चीज़ों में बहुत फ़र्क है. समझ रहे मेरी बात? तो आप तो ऐसे करते करते ऐश्वर्या तक चले जाएं, आपको वहाँ पे भी फिर खामियां नज़र आने लगेंगी. नहीं यार, थोड़ा सा ये सीन है, थोड़ा सा ये है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है. ट्राई टू कम्युनिकेट विद हर, और उनसे बात करें, क्योंकि शी डिज़र्व्स टू बी, शी डिज़र्व्स टू नो दिस. वो इसमें पार्टी हैं, उनके 4 साल इन्वेस्ट हुए हैं आपके साथ. देखिए, पैसा इन्वेस्ट हुआ हो, चला जाए कोई मसला नहीं. बिटकॉइन में डाला, 4 दिन में ऊपर हो गया, पैसा आ गया. ये 4 साल नहीं आते वापस. ये अब गए, और उनकी जवानी के पीक टाइम के, अज्यूमिंग शी इज़ इन हर मिड 20s, ठीक है. मुझे तो नहीं पता, आपने एज वेज नहीं लिखी हुई. अब आपने उनकी ज़िंदगी के 4 साल, और मर्दों को गंदा भी करके अब आप साइड पे हो रहे हैं. अब उनके उसमें वो आ जाएगा जी मर्द सारे हरामी हैं, हालांकि वो एक आप ही थे, आपने सबको लेबल करवा दिया, ठीक है. दूसरा 4 साल, अब आपने उनको, अब आपको अच्छी तरह पता है पाकिस्तान में किस तरह की सोसाइटी है भाई. जहाँ लड़की 25 से ऊपर हुई, चल भाई ये तो पुराने चावल साइड पे करो, खुरचन ऐसे कहते हैं. और ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, एशियन कल्चर इतना मिसोजिनिस्टिक है. आपको पता है चाइना में जो लड़कियाँ 28 से ऊपर की हो जाती हैं, उनको लेफ्ट ओवर नूडल्स कहते हैं. आई एम नॉट किडिंग, मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन इंस्टाग्राम पे. और कोरिया में भी इसी तरह की कुछ ना कुछ लैंग्वेज यूज़ की जाती है अबाउट विमेन हु हैव लाइक क्रॉस द प्राइम एज. तो ये बड़ा यार, एशिया तो बड़ा हल्ली वल्ली यार. सो भाई, आपको जब अच्छी तरह पता है यहाँ पे इस तरह के हिसाब किताब है, अब आप उनको 27-28 का करके आप साइड पे हो लिए, उनको तो प्रॉब्लम, आपको तो 50 में भी मिल जाएगी, आपको तो 60 में भी मिल जाएगी, 18 साल की मिल जाएगी. तो ऐसे ना करें भाई, अगली का टाइम ना ज़ाया करें. अगर आपको वैसे ही लग रहा है कि, मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर आपका दिल बिल्कुल उतर गया है, अब चूंकि आप 4 साल का फंस गए हैं तो अब आप उसमें मिजरेबल रहें, मैं ये भी नहीं कह रहा. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनसे कम्युनिकेट करें और बोलें हाउ डू यू फील, मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, वाई डू यू थिंक आई एम फीलिंग लाइक दिस, ठीक है ना. सुने वो क्या कहती हैं. आपने को पूरी बात नहीं लिखी कि ऐसा हो क्यों रहा है, लाइक डिड यू फाइंड समवन एल्स. या फिर मैं इसलिए कहता हूँ यार, रिलेशनशिप्स जो ना इतनी भी लंबी नहीं करनी. ये मंगनियाँ जो होती ना, 8 साल कुद्दूस की मंगनी 8 साल रही, अब बातें ही खत्म हो गई. रोज फोन कर करके बातें खत्म हो गई. अब शादी हो गई, अब समझ नहीं आ रहा बात क्या करें. ये भी बड़ा होता है. तो इतनी बातें कर लेते हैं लोग, उसके बाद था ना फिर वो फिर वेयर ऑफ हो जाती हैं चीज़ें. आई डोंट नो मैन, सबका खैर अपना अपना है यार.
मगर ये कि मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई कोल्ड फीट वोल्ड फीट ना हो, मगर मैं ये भी नहीं कह रहा कि जहाँ दिल ना हो वहाँ शादी कर लें। ज़िंदगी एक बार मिलती है, कम्युनिकेट करें, उनसे बात करें, उनसे पूछें यार ऐसा ऐसा मैं फ़ील कर रहा हूँ, हाउ डू यू थिंक वी कैन मेक इट बेटर, क्योंकि वो उसमें इक्वल पार्टी है। ऐसा ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का टाइम ज़ाया ना करें। ऐसे इससे फिर होता कुछ नहीं है। देखें उनके भी, देखें ऑक्सीजन नहीं हो आप, जिंदा रह लेगी वो। ये कहते ना मेरे बगैर मर जाओगी, क्यों मर जाएगी तू, क्या सिलेंडर है ऑक्सीजन का, क्या है तू, रह लेगी जिंदा। मगर वो उसके दिल में आप बिटरनेस डाल देंगे ज़िंदगी भर के लिए, फिर तो उसको सारे मर्ज जहर लगेंगे। इसीलिए तो लगता है नेट पे जो आप इतना पढ़ रहे होते हैं, दिल तोड़ के भागे हुए होते हैं, या कन्फ्यूजन बहुत है लड़कों में, ये मैंने बहुत देखा है, बहुत देखा है। लड़कियां कम से कम इस मामले में बहुत मेच्योर होती हैं, मेरा तो ये ज़ाती एक्सपीरियंस है। दे वेरी मेच्योर, वेरी सेंसिबल। ऊपर नीचे तो हर जगह ऊंच नीच हो ही जाती है, मगर लाइक व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ फर्म डिसीजन, लड़के डामाडोल, शायद कुछ और मिल जाए, शायद कोई अमेरिका वाली मिल जाए, शायद कनाडा का लग जाए, ये शायद में जो है ना, ये शायद भाई 40 के हो जाते हैं, मगर फ़र्क उनको कोई नहीं पड़ता, उनको फिर मिल जाती है। अगर तो उनका स्टेटस है, गाड़ी सिविक है तो बस सब कुछ है, सिविक है तो सब कुछ है। यहाँ पे तो ये हिसाब किताब है। तो भाई ज़िंदगी बर्बाद ना करो, 4 साल बहुत टाइम होता है, 4 साल में वो डिग्री ले लेती, तेरे साथ रख के उसको मिला क्या, वो अच्छा है इकरा में पढ़ लेती, क्या मिल जाता उसको, BBA CBA मिल जाता उसको, तेरे साथ रह के क्या मिला उसको। तो ये जुल्म ना कर भाई, से बात कर, प्यार से उसको बिठा, चाय वाय पिला, और बोलो भाई ऐसा ऐसा मैं फील कर रहा हूँ, क्या पता मैं जो है, मे बी यू आर वन ऑफ दोज गाइज जो कि कमिटमेंट से डरते हैं। ये भी बड़ा मसला लड़कों का, कमिटमेंट से भागते हैं। अरे हाय अब तो चलो, जब तक दूर दूर थी सही था, फ़ोन किया रख दिया, हफ्ते में एक बार मिल लिए, जैंडर्स पे मिल लिए, कॉफ़ी पी ली, ये यहाँ तक ठीक थी, ये तो सारा दिन घर पे बैठी रहेगी, मेरे से ही बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि कुछ लड़के जो होते हैं ना, वो बड़ा वो प्रोटेक्टेड होते हैं अपने सर्कल से, मुराद ये कि अपना एक प्रोटेक्टिव उनका एक केव होता है, ठीक है, मैं उस केव में बंद हूँ, मुझे तंग ना करो आके कोई, होते हैं ऐसे लोग। तो ये चीज़ आपको शायद डरा रही हो कि यार ये तो मेरी प्राइवेसी, मेरी स्पेस इन्वेड जो होने जा रही है, अब ये तो मेरे बराबर में सोएगी, मैं तो खुला यूं करके सोता था, माइकल एंजेलो की वो ड्राइंग है ना उसकी तरह, यूं सोता था मैं, ये अब आ जाएगी, मुझे यूं होना पड़ेगा। तो ये भी होते हैं। तो कहीं आप ये वजूहात तो नहीं है, ये बातें फिर आपको तभी पता चलेंगी जब आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे। शायद वो भी ऐसा फील कर रही हो, बट वो बता ना पा रही हो, क्या पता, तो आपके लिए तो और आसान हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कम्युनिकेशन इज़ द की। वो कल एक मैंने लतीफ़ा पढ़ा था, एक भाई की वो घर की चाबी गुम गई, तो लॉक के पास आके बातें करते रहे, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द की। मतलब लानत, 3rd क्लास जोक तूने उस पूरा मैंने पढ़ा, पहला पता नहीं क्या चल रहा है, तो उसका लुब्बे लुबाब ये था कि वो चाबी गुम गई, मैं पता नहीं कुछ इमरजेंसी हो गई, बताएगा कि मैंने फिर ये किया वो किया, कह रहा है मैंने लॉक पे मुँह दे के बात की, कम्युनिकेशन इज़ द की, खुल गया। लख दी लानत, टाइम ज़ाया करते हैं। देखा इतना से पढ़ के मेरा टाइम ज़ाया, मुझे बुरा लग रहा है, उसके 4 साल बर्बाद किसको बुरा नहीं लगेगा। तो बात करो, क्या पता वो भी ऐसी कोल्ड फीट हुई हुई हो, गर्म ठंडे पैर हुए हुए उसके, बताना चाह रही हो, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। सो कम्युनिकेट करें। थैंक्स। हाँ जी, नेक्स्ट वन सेज रेजिंग माई चाइल्ड इन पाकिस्तान। डियर जुनेद, आई मेड एन ऑल्टरनेट अकाउंट टू प्रिजर्व माई आइडेंटिटी एंड होप यू विल रीड एंड एड्रेस माई क्वेश्चन. It is keeping me up at nights. Please allow me to give you a bit of a background so you'll understand why I'm reaching out to you. My life has been quite eventful. My father worked abroad and back home I was sexually abused by my own uncle for years while he beat up my siblings in front of me to keep me quiet. I worked in a Pakistani firm that owes me money in 7 figures. There is a whole host of twisted shit that might make a book or a movie, but I'm not here for myself. I'm all too familiar with the ugly face of our society. Not surprised. Now I have a daughter who just turned 6, mashallah. I try to impart on her the best values to make her a smart, selfless, compassionate and independent woman. If she says to me, kids at school tell her that all Indian and Christians are enemies, I try to explain to her that an enemy is someone who is actively out to hurt you, irrespective of his religion. That's very good. If she says, oh, look, a criminal, because he's wearing a black and white striped clothes, I tell her that our clothes don't make us who we are. It is our actions that make us good or bad. I give her 200 rupees per week to tell her to give half of that money to the needy, which she does. She takes interest in MMA, music and drawing, which I encourage and do everything in my power to facilitate her.
However, recently I've observed that these values I'm teaching her are actually hurting her. She recently got beat up at school because she argued with her class fellows at school that all Christians are not enemies. The other day I saw a kid half her height punching and snatching the toys from her while she didn't resist and came crying her eyes out to me. When I asked why she didn't stop or pushed him away, she said she didn't do it because she was afraid that she might hurt him, which gave me flashback of the times I tolerated shit for others. So my question is, am I doing a disservice by teaching her values that have no place in her society? Will she resent me when she figures out that all the things I taught her are lies and reality is quite the opposite? I know the short answer is to leave this country, which while chances are low, I'm still pursuing. But if that doesn't come through, what can I do to ensure I'm not setting her up for failure? I can't tell her that if you can't beat them, join them, because that's not what I did, even though sometimes it feels like that is exactly what I should have done. मैंने अपने बड़ों से सुना है कि बेटी की शादी की फ़िक्र माँ बाप की अव्वलीन तरजीह होती है, बट वी लिव इन टाइम्स वेयर आई एम एक्चुअली वरीड हाउ शी वुड सर्वाइव इन दिस सोसाइटी. एब्सोल्युटली. मजमून काफ़ी लंबा हो गया है. माई अपॉलॉजीज फॉर आई टुक टू मच ऑफ योर टाइम. थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स प्रोवाइडिंग पर्सपेक्टिव एंड एट टाइम्स ब्रूटल ऑनेस्टी. दुआ में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. सो बेसिकली इनका मसला ये है कि शी हर सेल्फ वॉज अब्यूज्ड बाय समवन इन ओन फैमिली बचपन में, और फिर जब बड़ी हुई काम किया. एक फर्म है जो कि इनके हु ओज देम मनी इन 7 फिगर्स, यानी मिलियन से तो ऊपर की ही बात है, राइट. प्रीटी नॉर्मल इन पाकिस्तान. यहाँ पे कोई वो लॉज तो है नहीं, लेबर लॉज मतलब है, मगर वो बस हैं, जैसे कि ट्रैफिक के लॉज हैं, अप्लाई नहीं होते, राइट. अब इनकी बेटी है 6 साल की, जिनको ज़ाहिर है ये उस हिसाब से टीच करिए जो कि जिस तरह बच्चों को टीच करना चाहिए. बच्चों को कंपैशनेट बनाना है, बच्चों को ये नहीं सिखाना है इंडिया दुश्मन है, क्रिश्चियन दुश्मन है. ये आप यकीन करें. देखें, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ना, हेट जो है ना, हेट नफ़रत का जो इमोशन है वो हमेशा सिखाया जाता है. इंसान इनहेरेंटली मोहब्बत की बात करता है. आप किसी भी बच्चे से किसी भी रेस के बारे में ओपिनियन ले, वो हमेशा अच्छी बात ही करेगा, राइट. जब तक उसको सिखाया नहीं जाएगा कि जी काले ऐसे होते हैं, या गोरे ऐसे होते हैं, या चाइनीज़ ऐसे होते हैं, राइट. ये चीज़ हेट सिखाया जाता है. या जी शिया ऐसे होते हैं, या जी सुन्नियों से ऐसे रहना है, या बरेलवी ऐसे, या हिंदू क्रिश्चियन, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं और बच्चे सीखते हैं. और बच्चे वही बातें करते हैं जो उनके घर में चल रही होती हैं, उनको सिखाई जाती हैं. बच्चे को माँ के पेट से सीख के नहीं आते कि जी ये हिंदू बुरा है या क्रिश्चियन बुरा है, राइट. ये सिखाया जाता है. अब बड़ा मुश्किल है ऐसी सोसाइटी में. और बच्चे जो है ना बहुत मीन है. लाइक बच्चे, किड्स आर एसहोल्स मैन. लाइक आप कभी देखें, इतने इंटाइटल्ड बच्चे हैं आजकल के. अब मैं इसके भी फेवर में नहीं हूँ कि जी बच्चों के ठुकाइयाँ की जाए जिस तरह हमारी होती थी रबड़ के पाइप से. भाई वो फिर बच्चे अजीब, वायलेंस को तो मैं कभी भी कंडोन नहीं करता, ठीक है ना, कभी भी नहीं होना चाहिए. मगर किसी ना किसी किस्म की कोई रिपरकशंस तो होने चाहिए ना बच्चों के लिए. कि आप उनका फ़ोन ले लो, उनका आईपैड टाइम ले लो, या उनका आप पॉकेट मनी कम कर दो, कुछ तो हो. आजकल के बच्चे इतने इंटाइटल्ड होते हैं. आपको याद होगा यार, हम जब स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, पेरेंट्स को बुलाया जाता था तो पेरेंट्स हमें डांटते थे. आजकल के पेरेंट्स बच्चे के साथ स्कूल जाते हैं और टीचर को डांटते हैं. टीचर भाई आपके वालिदैन होते हैं. हमें तो ये सिखाया था. हम आज भी उनकी इज्जत करते हैं, आज भी उनको ढूंढते हैं फेसबुक पे अपने टीचरों को, उनको सलाम करते हैं, खुश होते हैं हमें देख के. हमारे तो वालिदैन जैसे थे, हमें तो बनाने वालों में से हमारे टीचर हैं. लेकिन आजकल तो चूँकि धंधा है स्कूल, तो फिर टीचर भी क्या है, टीचर भी एक कमोडिटी है. जिसको बाप जो है ना 40,000 फीस दे रहा है, वो स्कूल के मुंह पे डोनेशन मार के टीचर को हटवा भी सकता है, और करते हैं. बहुत जुल्म होता है टीचर्स के साथ. सो बच्चे यही वैल्यूज़ फिर देखते हैं. वो आगे आजकल के बच्चे, फ्रेंड ऑफ माइन, उनकी बेटी पढ़ती है एक बहुत बड़े स्कूल में, और वहाँ पे एक बच्चे को, 7 साल के बच्चे हैं ये, एक बच्चे को बर्थडे पार्टी में सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया गया कि बच्चे ने बोला कि तुम्हारे पास पुरानी कोरोला है, हमारे घर के बाहर अच्छी नहीं लगेगी. यार ये किस किस्म की नस्लें हैं ये जो हम तैयार कर रहे हैं. ये किसी ने तो उस बच्चे के जहन में डाला है कि जी सिर्फ सिविक वाला आएगा या ये आएगा. अबे कोरोला पे लोग इतने चौड़े हैं, यहाँ पे कोरोला टैक्सियाँ होती हैं दुनिया भर में. वीगो पे यहाँ लोग चौड़े हैं. वीगो पे तो मैक्सिकन सामान लोड करके काम करने जाते हैं, लॉन मो करने जाते हैं वीगो पे बैठ के. यहाँ पे वीगो पे चौड़ा पूरा मुल्क. अबे अजीब ही चल रहा है.
तो ये बच्चों को कौन सिखा रहा है ये चीज़ें कि जी हमारे पास सनरूफ वाली सिविक है? बच्चे करते हैं ऐसी बातें। तो अब ऐसे में, अब देखिए मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई जैसे, उन्होंने अपने बच्चों को जानबूझ के, हालांकि ही इज़ डूइंग वेरी वेल इन लाइफ माशाल्लाह, ही इज़ वेरी वेल एजुकेटेड, मगर उन्होंने जानबूझ के अपने बच्चों को एक कैथोलिक स्कूल में लगाया है, ठीक है। हालांकि ही कुड हैव अफोर्डेड ऑल द बेस्ट स्कूल्स इन कराची, यू नेम इट, ही कैन अफोर्ड इट, मगर उसका ये मानना था कि यार बच्चे जो है ना, मैंने बबलू बच्चे नहीं चाहिए, ये सोसाइटी बड़ी कंजर सोसाइटी है, मेरे बच्चों ने बड़े होके, ये जो बच्चों को हम शेल्टरिंग करते हैं ना, वो गली से, आज ही मैं वो एक नईम बुखारी साहब का इंटरव्यू देख रहा था, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं ताजदार ज़ैदी, उनका इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें वो यही कह रहे थे कि जब हम भाटी गेट में बड़े हो रहे थे लाहौर में, तो हमारी गली में ऐसे भी बच्चे थे जिनकी अम्मियाँ नहीं आनी, नहीं जी बाहर नहीं जाना, बाहर बच्चे गालियाँ देते हैं। तो कह रहा है जी कब तक छुपा लोगे आप, बच्चे ने तो सीखनी है गालियाँ, ठीक है। अब ये आपकी तालीमात होती है कि आपके सामने नहीं देनी, या दूसरों के बड़ों को नहीं देनी, वगैरह वगैरह। एनीवे, तो मेरे दोस्त का भी यही मानना था कि यार देखो, मैं जितने पॉश स्कूल में पढ़ा लूँ, गाड़ी तो उसकी लाइन्स एरिया से ही गुजरनी है, जौहर चौरंगी से ही गुजरना है उसने रोज़, वहाँ पे तो उसका सामना उन्हीं लोगों से है, तो या तो मैं बबलू बच्चे बना के मैं डिससर्विस करूँ उनके साथ। बच्चे बोलेंगे यार आपने हमें क्या, लिटिल मिस मफिट सैट ऑन अ पफिट, बाहर तेरी बहन की तेरी माँ की चल रहा है, ये क्या तजाद है। तो बच्चों को उन्होंने कैथोलिक स्कूल में डाला, वो थोड़ा सा वहाँ पे बच्चे थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट वाले बच्चे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यार बच्चों ने इधर ही रहना है, ठीक है। अब वो अलग बात है कि अब वो जा रहे हैं, उन्होंने भी हाथ उठा लिया, खुदा हाफिज़, इस मुल्क का कुछ नहीं, जैसे कि आप भी, यार कोई काम का बंदा नहीं रहना चाह रहा यहाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, कोई काम का बंदा यहाँ रहना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि उस काम के बंदे का मुल्क ही नहीं है भाई, ये बदमाशों का मुल्क है, आप बदमाश हैं, आपके लिए बेस्ट मुल्क है। अबे आप बंदा उड़ा दो, सीसीटीवी पे नजर भी आ रहा है आपने उड़ाया, आप बरी, नहीं जी सबूत नहीं मिले, अबे वीडियो में लोग पकड़े जाते हैं, नहीं जी नहीं, इससे अच्छा मुल्क है किसी के लिए? उन्हीं के लिए ना जो दो गलत काम करते हैं, हम शरीफों का तो मुल्क है ही नहीं भाई ये, तो जो शरीफ आदमी है वो यहाँ रह ही नहीं सकता, या जो अपनी औलाद का चाहता है कि यार थोड़ा सा अच्छा हो, जिसने बदमाशी बनाना है तो उसके लिए तो बेस्ट मुल्क है। कब्ज़े माफिया ये वो, बड़ा यार अजीब, बहुत मुझे ना घुटन होने लगी अब। एनीवे, तो उसने अपने बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल में डाला कि यार मैं अपने बच्चों से डिसर्विस नहीं कर सकता। अब रही बात आपकी, देखे हम भी इतनी डिफरेंट वैल्यूज़ पे पले बड़े थे, मगर देखें ना, ये भी तुक्के की बात होती है, ये हम रिस्क ले नहीं सकते औलाद के साथ, ये गैम्बल है। कि मैं जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, हमें भी यही पढ़ाया कि जी इंडिया दुश्मन है, हिंदू दुश्मन है, इंडिया नहीं हिंदू दुश्मन बता दिया। अब हमारे स्कूल में जो हिंदू पढ़ रहा है, हम कह रहे हैं यार, हम लोग लिटरली समझते थे कि ये एजेंट है, ये हमें बम से उड़ा देगा यार। लाइक हम अपनी हिंदू फ्रेंड से मैं पूछता था कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तुम किसको सपोर्ट करती हो, और जब वो बोलती थी ना पाकिस्तान, मुझे यकीन ही नहीं आता था। कह रही है भाई मैं PCHS में रहती हूँ, मैं क्यों सपोर्ट करूँगी इंडिया को, मैं यहाँ की हूँ। हम मानते ही नहीं थे, क्योंकि हमें ये सब ब्रेन वॉश किया हुआ था कि जी पाकिस्तान तो मुसलमानों का है, हिंदू इंडिया का है। और मैं ये समझता था कि हर मुल्क रिलीजन के हिसाब से बांटा हुआ है। दिस वॉज माई अंडरस्टैंडिंग व्हेन आई वाज इन ग्रेड 5। तो मेरा एक पारसी दोस्त था, आर्या नाम था उसका। आर्या से मैं पूछता था तुम लोगों का मुल्क कौन सा है, वो कहता था पाकिस्तान। मैं कहता भाई हट बे, पाकिस्तान तो मुसलमानों का है, तुम पारसी हो, तुम लोगों का कौन सा है? अच्छा मैं समझा बोलेगा इंग्लैंड बोलेगा, अमेरिका बोलेगा, वो कह रहे पाकिस्तान है, हम नस्लों से यहाँ रह रहे हैं। मैं मानता ही नहीं था। तो लेकिन फिर वक्त के साथ साथ वही ना, फिर शऊर आया, हमने खुद चीज़ों को खोजना शुरू किया, तो हमारे अंदर से वो एक होती है लर्निंग और एक होती है अनलर्निंग। तो हमने ये चीज़ें अनलर्न कर दी कि जी हिंदू दुश्मन नहीं है, राइट, या पारसी दुश्मन नहीं है, या क्रिश्चियन दुश्मन नहीं है, राइट। मगर ये तो हर किसी को नसीब नहीं होता। मेरे साथ के दोस्त अब एक ही स्कूल से पढ़े, एक ही कॉलेज से पढ़े, एक ही कोचिंग सेंटर, एक ही दोस्त यार, एक ही, मगर वो फिर प्रो तालिबान है, वो कहते तालिबान सही थे। ऐसे भी दोस्त हैं मेरे, मानते ही नहीं है। तो ये तो भाई फिर किस्मत की बात है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप अभी जैसा ज़माना है वैसा चला लें, बड़ी होकर खुद ही सीख लेगी। खुदा ना खास्ता अगर ना सीखे तो गलत साइड पे निकल जाए। ऑलवेज टीच द राइट थिंग, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि देखें सच का रास्ता होता सबसे मुश्किल है और होता सबसे लंबा है, लेकिन गारंटीड रास्ता होता ही वही है। झूठ पे आप बहुत, यू कैन ओनली गो सो फार बाय टीचिंग योर किड्स लाइज, राइट। मगर फिर वही वाली बात है, वो बच्ची ही 6 साल की है, वो
इस कॉम्प्लिकेशन को कैसे समझेगी कि मैंने कहाँ पे कितना बोलना और कहाँ पे कितना नहीं बोलना, राइट? ये तो हम समझते हैं ना। अब जैसे देखें, मेरे एथियस दोस्त भी हैं, मेरे गेज भी फ्रेंड्स हैं, मेरे आलम दीन भी मेरे दोस्त हैं, हर तरह के दोस्त हैं, तो मुझे पता है कहाँ पे बैठ के क्या बात करनी है, राइट? तो अब एक 6 साल की बच्ची को तो नहीं पता, लेकिन उससे रहना भी इस माहौल में है। ये बहुत टफ क्वेश्चन है। इसमें क्या करना चाहिए? इसमें या तो फिर आप बच्ची को, यार मैं तो इस स्कूल की एजुकेशन के ख़िलाफ़ हूँ, यहाँ के स्कूल्स की, स्कूल के ख़िलाफ़ नहीं, स्कूल एजुकेशन जो यहाँ की जा रही है, दे डोंट टीच एनीथिंग टू द किड्स। होम स्कूलिंग बिल्कुल सही है, बंदा अपने हिसाब से पढ़ा है। आई मेट दिस गाय, उनकी दुकान थी चूरोज़ वगैरह की, वेरी इंटरेस्टिंग गाय। वो कह रहे हैं मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ा रहा हूँ, और बच्चा उनका कुछ 14 साल का था, और वो बच्चे फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं, 7th क्लास के एज के बच्चे फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं। कह रहे मैं पढ़ा रहा हूँ, और कह रहे फिर बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, वो पढ़ रहे होंगे माउस क्या है, पेड़ की आँख। एक बंदा जो है एरिस्टोथनीस को पढ़ रहा है, राइट? और उसके बाद वो आ जाएगा, माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस, दिस इज़ एन आउटपुट डिवाइस, दिस इज स्टोरेज डिवाइस, ये कर रहा होगा। सो या, you're doing the right thing, you're not doing a disservice to your child. I know it can be physically and emotionally traumatic for you and for your girl as well. और जाहिर है, देखें मैं भी नया पेरेंट हूँ, नहीं बर्दाश्त होता औलाद का दुख, वो ये तो फील तो होता है। आई वुड सजेस्ट यू टेल हर कि देखें बेटा ये चीज़ें सही हैं, मगर अभी आपने ये चीज़ें डिस्कस नहीं करनी लोगों से, राइट? सो दैट वे नॉट ओनली यूर टीचिंग हर द राइट थिंग्स, यूर ऑल्सो टीचिंग हर व्हाट टू से व्हेन एंड वेयर टू से व्हाट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे बड़े, क्या बोलूँ मैं यार, बच्चे बहुत बहुत जंगली होते हैं अगर इनको सही से ना किया जाए। और आजकल के जो ये बड़े स्कूलों के बच्चे हैं, तो यार ये तो हम एक एंटाइटल्ड नस्ल, एक पौध जो पैदा कर रहे हैं ना। मैं यूनानिमसली जनरलाइज नहीं कर रहा, मगर हम देखते हैं यार, आप मॉल्स में जाते हैं, आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आप देख रहे होते हैं, आपको पेरेंटिंग नज़र आ रही होती है। जो बच्चे भाग रहे होते हैं ना रेस्टोरेंट्स में, वो सब बता रहा था कि पेरेंटिंग कितनी अच्छी हो रही है इनकी, मासियाँ पाल रही हैं, मासियों ने गोद में उठाया हुआ है, मम्मी को फिक्र ही नहीं है, फादर को फिक्र ही नहीं है। फिर वो अनलव्ड बच्चे जब बड़े होते हैं, फिर वो अपना वो वाले, फिर वो फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालनी है ना उन्होंने। सो या, सो टीच हर, यूर टीचिंग हर द राइट थिंग्स, यूर नॉट डूइंग अ डिसर्विस टू हर। और MMA बिल्कुल सिखाएं, मैं तो इसके बिल्कुल हक में हूँ। बच्चियों को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए है, इनको सिखाएं। मैं तो कहता हूँ ये मैंडेटरी हो जाना चाहिए। क्या PT की क्लास, PE की क्लास क्या होती है, MMA कराओ, ताकि वो जो स्कूल में भी जो बुली है ना, वो सीधा रहे, वो बात वहाँ तक जाए ही ना कि जी एक बुली है वो तंग कर रहा है। जब पता होगा ना यार ये सारे MMA करके आए हुए हैं, तो वो सीधे ही रहेंगे। तो बिल्कुल MMA कराएं, म्यूज़िक, ड्राइंग, दीज आर वंडरफुल थिंग्स। और यही एज होती है आप बच्चों को जिस उसमें डाल देना, ये क्रिएटिव एज होती है, क्योंकि दिमाग मोल्ड हो रहा होता है। दिस अ वेरी गुड थिंग दैट यू डूइंग। मेरा भी यही प्लान है, आई टीच माई सन एटलीस्ट कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए बच्चों को। उससे ना बच्चे फिर एक क्रिएटिव जोन में निकल जाते हैं। लाइक वो बच्चों के पास टाइम बहुत होता है। मेरे पास अभी कीबोर्ड है, मैं सीखना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। आई हैव फ्रेंड्स हु आर म्यूजिशियंस जो मुझे सिखा भी सकते हो, कह रहे हैं फ्री में सिखा देंगे। बड़े बड़े नेस्कैफे बेसमेंट वाले, कोक स्टूडियो, वो सारे हैं, दोस्त हैं, आ जाओ फ्री में सिखा देंगे। टाइम ही नहीं है। तो ये वाली जो एज होती है ना, इसमें टाइम ही टाइम है, लगे पड़े गिटार बजा रहे हैं, घंटों बजा रहे हैं, उसमें सीख भी जाते हैं बच्चे बहुत चीज़ें। सो इट्स गुड, बच्चों को बिजी रखें। और आई एम नॉट गोइंग टू से दैट यू आर डूइंग अ डिसर्विस टू योर चाइल्ड। आप बिल्कुल सही हैं, और अब जितनी अर्ली बच्चों को ये चीज़ें समझ आएंगी, इन चीज़ों का ख्याल होगा, तो वो उनके लिए उतना ही अच्छा है। वरना फिर उनके लिए कल्चर शॉक है। अभी आप उनको बोलेंगे कि जी जैसे चल रहे हो वैसे रंग में रंग जाओ, फिर जब बड़ी होगी, जब वो खुद रियलाइज़ करना शुरू करेगी, तो फिर वो फील करेगी कि यार मैं तो इतने अरसे मैं तो ये चीज़ें बिलीव करती रही। वो फिर वो जो रिजेंटमेंट आपके लिए होगी, दैट्स नॉट गुड आइदर। तो जस्ट टेल हर, टीच हर to be patient and quiet. I know it's difficult with a 6-year-old, but yeah, I won't call it disservice. But thank you. I hope this email was helpful. My response was helpful in any way. मगर ये कि बच्चों का मामला है, बड़ा सेंसिटिव होता है। स्ट्रीट स्मार्ट ज़रूर बनाए बच्चों को,
और सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाएं, ये तो मैं कहता हूँ। बच्चे ना वो नहीं हो कि जी 23 साल का और अम्मी को ही देख रहा है कि अम्मी कुछ पका के देंगी तो मैं खाऊंगा वरना कुछ नहीं खा सकूंगा, ये तो बहुत ऑफ सीन है। बच्चों को इनेबल करें, बच्चों को पैरों पे खड़ा होना शुरू से ही सिखा दें। यह जापान में बच्चे खुद बस में और ट्रेन में बैठ के स्कूल जाते हैं, 6-6 साल के बच्चे, 7-7 साल के बच्चे खुद। खैर वो माहौल ही अलग है, वो माहौल ही अलग है। हालांकि परवर्ट्स जितने जापानीज हैं कौन होगा, मगर इस मामले में कम अज़ कम वो बड़े कंपैशनेट हैं, तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस बच्चों को दें अपने। थैंक यू। हाँ जी, लास्ट वन ऑफ टुडे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, आई डिस्कवर्ड योर चैनल ड्यूरिंग द लॉकडाउन, आई स्टार्टेड बिंज वॉचिंग योर वीडियोस, आई ऑल्सो शोड अ फ्यू ऑफ दीज to my friends and family and they got inspired as well. Thank you. The world needs more people like you. Coming to my problem, I'm a doctor doing a house job. I've been in a long distance relationship for 2 years. Meanwhile, another girl who was my classmate got interested in me when I was in my final year out of nowhere. Out of nowhere नहीं होता, आपने कुछ सिग्नल दिए होंगे, ऐसे कोई दिल में नहीं आ जाता, खिड़की खुली होती है तो आता है। तो ये छोड़ दें कि आउट ऑफ नोवेयर आ गई, काके को पता ही नहीं, लड़की आ गई अंदर। अबे Meanwhile, I did not tell her that I'm in a relationship. प्लेयर तो हो आप बता भी नहीं रहे, आ भी अच्छा पता नहीं चला काके को बच्ची आ गई और फिर बता भी नहीं पा रहा कि ऑलरेडी कोई है। सही है। I did not tell her I'm in a relationship because I thought it would break her heart. अरे काके तू पूरे लड़कियों के दिल का तूने ठेका लिया हुआ है, उनके दिल जोड़ के तू समझ बॉन्ड है। दिल नहीं तोड़ना, इसलिए मैंने उससे भी चक्कर चला लिया। वाह यार, मैं बेगम को भी ये टोपी दूंगा, मैं भी कोई ढूंढता हूँ, फिर बोलूँगा यार मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाह रहा था। एनीवे, आई थॉट इट वुड ब्रेक हर हार्ट एंड आई फ्रेंड जोन्ड हर. I had told her in the start that we can never be together and she was also good with this. But as our friendship grew deeper, I fell in love with her too. Now I have intense feelings for both the girls. वाह, जबरदस्त भाई, वाह। CBA कहता है ना भाई, वाह। The obvious solution was to tell the second one about my first relationship, which I did, but contrary to my expectations, she chose to continue to talk to me. Okay. Now both of them know about each other. I have fallen prey to the effect of sunk cost fallacy, which means to continue an endeavor as a result of previously invested resources. Not financial resources, but help in frivolous issues. अंग्रेजी पूरी आती है तेरे को, ऐवी नहीं तू फंसा रहा। Now what do? I can leave neither of them, nor I can marry both. Yes, I know the famous quote of Johnny Depp about choices, but that does not help. प्लीज गाइड मी, लॉट्स ऑफ प्रेयर। अबे गाइड तू कर हमें, दोनों भी राजी हैं, ये तो तू हमें गाइड कर। भाई कॉल मिला है इसको, कहाँ है इसका नंबर, आया क्या? नहीं, नंबर नहीं दिया इसने। अच्छा लिखा लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू, योर फैमिली एंड द एडिटर। तेरे को भी दुआएं दे दी। अबे इसके बाद एक नहीं है भाई, तू 2 लेके घूम रहा है, इसलिए इसके बाद एक नहीं है। अल्लाह मियां ने सबको जोड़ों में बनाया है, जोड़े आसमानों में बनते हैं, पकड़े सफारी पार्क पे जाते हैं। तू 2 लेके बैठ गया, ये अकेला घूम रहा है, मारा फिर रहा है। न्यू ईयर पे इसको मैं लेके गया और मारा, मिट्टी पे दिल बना रहा है यूं करके। वो दिल लेने कोई नहीं आ रही, मिट्टी पे दिल बना रहा है, अकेला बैठा हुआ। भाई गाइड गाइड तो आपने करना है हमें, कि दोनों को भी मना लिया। अच्छा दोनों खुश भी हैं, दोनों से शादी नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते भाई, कर ले भाई, अब दोनों खुश हैं। अच्छा सहेलियां लगी रहेंगी आपस में, हैं। वरना क्या होता है भाई, यूजली आप दफ्तर जाते हो, पीछे से अम्मी अगर वो काम नहीं करती, अम्मा बेगम एक दूसरे का मुंह देख देख के चिड़चिड़, फिर दोनों, माँ अलग फ़ोन करी, बीवी अलग। इधर 2 सहेलियां होंगी, वो आपस में ही लगी रहेंगी, तुम्हें तंगी कोई नहीं करेगा, तुमको तीसरी ढूंढ लेना है। संक कॉस्ट फैलेसी, डायलॉग पूरे आते हैं भाई। यार ये टाइट था कि आउट ऑफ नोवेयर आ गई लड़की। अबे वो होते हैं ना यार नाइट विजन वाले गॉगल्स, अबे हम तो अंधेरे में ढूंढ रहे होते थे, कोई आ जाए कहीं से, चुड़ैली आ जाए। अबे एक टाइम ऐसा भी था, अबे एक कार साथ में बाइकें लेके घूमते थे, अबे चुड़ैली मिल जाए, थोड़ी देर तो गर्मी लगेगी, पीछे बाइक पे बैठेगी तो पैर उल्टे हैं तो उल्टे हैं, क्या है? हम कौन से सीधे थे, हम भी तो उल्टे थे। हम पे तो ये भी टाइम आया है। तुम लोगों के तो मजे हैं भाई, तुम्हारे पास सोशल मीडिया है, टिंडर मिंडर बम्बल, पता नहीं क्या क्या, डंबल। अबे सब हम डंबल लेके खड़े होते थे हाजी मस्तान, हाजी मस्तान कह रहा हूँ, हाजी क्लब। वो हाजी साहब आते थे शाम को असर के बाद, खिताब करते थे माइक पे कि
हाँ जवानों, गुड़िया को खुश करना है। और इस पे फिर लड़के ये लगाते थे, ये बाइसेप चल रहा है ना, गुड़िया को खुश करना है? अबे हटा बे, हमें बोल रहा है गाइड। अच्छा यार ये टाइट था कि वो पता नहीं कहाँ से आ गई। मैं तो आराम से हाउस जॉबिंग कर रहा था, मैं तो है टीके लगा रहा था मैं लोगों को, पता नहीं कहाँ से मेरे दिल में टीका लग गया। यार ये बड़ी टाइट दी है इसने। मैं इसी पे ही लेता रहूंगा, 1 घंटे की पूरी इसी पे ही पॉडकास्ट है। 1 घंटा वो, 1 घंटा मैं तेरी इसी बात पे लूंगा। तेरे को पता कैसे नहीं चला? तू क्या टांके लगा रहा था? तू क्या मुसल्ले पे बैठा था, तहज्जुद पढ़ रहा था, पता ही नहीं चला कहाँ से एंजल आ गई है? वो क्या थी वो, एंजेलिक मुन्नी, एंजेलिक मुन्नी कहां से आ गई, तेरे को पता ही नहीं चला? भाई अबे हम तो सूंघ लेते थे। अबे रॉट वाइलर कुत्ता क्या सूंघता होगा, हम दूर से सूंघ लेते थे कोई खातून कहीं से आ रही है अगर तो। भाई टाइम ही ऐसा था, ड्राई चल रहे होते थे। डीजे कॉलेज, फॉरमेन कॉलेज, अबे नाम में फॉर मेन था ही, फॉर मेन, मेन ही थे अंदर। और वो फर्स्ट इंटर वाले होते ना, हल्की रुए वाली मूछें होती है सबकी, अजीब लग रहे होते सारे। अजय देवगन, अबे वो कौन सी फिल्म थी, जीता था जिसके लिए, वो वाला अजय देवगन, सारे ऐसे ही थे, मैं भी ऐसा ही था। वो फिर इतनी दूर पैदल जाते थे सर सैयद कॉलेज, वहाँ पे वो फिर वो हम खड़े हो जाते थे, वो खड़े ही हो सकते थे और क्या कर सकते थे हम। खैर नॉट एंडोर्सिंग दी आइडिया, छेड़म छाड़ी बुरी, खैर हमने कभी की नहीं, बस खड़े होके वहाँ आंखें ठंडी कर रहे हैं भाई, यही हो रहा था बस, यही करते थे। फिर 7C बस आती थी, 7H में मैं चढ़ गया, 7C में वो चढ़ गया भाई, यही था भाई। लकी नंबर 7 कभी नहीं हुआ, 7 ही 7 था भाई। तो हम तो सूंघ लेते थे भाई, तेरे को पता ही नहीं चला। तो टांके लगा रहा था, मतलब तू सर्जरी में भाई तू लगा हुआ होगा फुल हार्ट यहाँ से लगा के दूसरा ट्रांसप्लांट, यहाँ आपके हार्ट में कोई आ गई, पता ही नहीं चला अब काके को कहाँ से आ गई है, मेरे को तो पता ही मैं तो यहाँ खड़ा हुआ था समोसे खा रहा था, पता नहीं कहाँ से आ गई आ जाए। अच्छा आ गई, फिर बता भी नहीं रहा कि दिल ना टूट जाए। हाय इसको इतनी फिक्र भाई, तू क्या कार्डियो में हाउस जॉब कर रहा है, कहाँ कर रहा है तू? तेरे को दिलों की बड़ी फिक्र है। तू कार्डियो में, इसको ढूंढ के आ, ये नाम इसका लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कैमरे पे नहीं बोल रहा, अभी बाइक स्टार्ट कर ढूंढ के आ, पूछ जना अस्पताल से, सिविल वगैरह सारे जगह, ये क्या काम करता है ये कार्डियो में है, इसको बड़े दिलों की फिक्र है। दिल ना टूट जाता काकी का, तो छुपा के ही रख दिया। और पिछला वाला कितने से चल रहा था इसका भाई, 2 साल से, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस। ये तो मसला है ना लॉन्ग डिस्टेंस में भाई, कोई शॉर्ट डिस्टेंस वाली आ जाए तो फिर वो लॉन्ग में फिर लॉन्ग हो जाता है, फिर वो शॉर्ट, समझ रहे ना आप? लॉन्ग डिस्टेंस भाई अल्लाह किसी को भी ना दे, वह बहुत पेनफुल होता है यार लॉन्ग डिस्टेंस, तो खैर बड़ा ही ख़राब चीज़ है। अच्छा बताया ही नहीं भाई, और फ्रेंड जोन किया फिर भी वो खुश थी। अच्छा ये भी एक होता है ना, देखो भाई मर्दों का पोर्न होता है pornhub.com, ठीक है ना, हब चौकी या फिर पोर्नहब चौकी, यही 2 काम है मर्दों के, या तो बाइक लेके वहाँ हब चौकी गए हुए या हब पे रात को घूम रहे ठीक है। खवातीन का पोर्न होता है उनकी बातें सुने। आज मेरे साथ ये हुआ, मैं वहाँ गई, फिर वो करीम वाले भाई ने बोला, उसने फिर मास्क नहीं पहना होता, मैंने बोला मास्क पहन लो, वो छीके मारे जा रहा था, फिर उसने किसी को फ़ोन मिला लिया, मैंने बोला मैं, अब वो उनका ये होता है कि कोई सुने हमारे दिन के बारे में। तो जैसे आपने बोला मैंने फ्रेंड जोन कर दिया, उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा, तो वो उनको यही चीज़ पसंद होगी, उनको टाइम चाहिए होता है, बस वो मेरी बातें सुने कोई, तो वो ये होंगी। सो या ये कुछ वो में होता है, सबका नहीं है। अच्छा आई हैड टोल्ड हर इन द स्टार्ट वी कैन नेवर बी टुगेदर, शी वॉज ऑल्सो गुड विद दिस। हाँ ना, तो वो तो गुड है ना। या तो आप उनके रामू काका होगे, समोसे ले आओ, पेप्सी ले आओ, चाट ले आओ, फ्लेमिंगो पे बैठे, मैं देखता हूँ ना डॉक्टर वॉक्टर घूम रहे होते हैं, वो तो डॉक्टर तो खुद बता रहे होते हैं, डॉक्टर ने कंधे पे कोट ना हो तो घर से नहीं निकलते हैं। तो वो फ्लेमिंगो पे बहुत आए हुए होते हैं दोपहर 1 बजे के टाइम, जिना अस्पताल वाले, इधर उधर वाले, ठीक है कोई बात नहीं यार, उनका भी दिल है, वो भी चना चाट खाएंगे, ठीक है, सेना पिएंगे। तो भाई अच्छा फिर क्या हुआ, एज अ फ्रेंडशिप ग्रू डीपर भी हो गए, वाह। आई फेल इन लव विद हर टू, नाउ आई हैव इंटेंस फीलिंग फॉर बोथ द गर्ल्स, दोनों पे इंटेंस है। भाई तू परफ्यूम है, कौन सा वो इंटेंस वाला आता है, डनेल का आता है, कौन सा आता है, सब पे इंटेंस मार रहे तू, उस पे भी इंटेंस है, उस पे भी इंटेंस है, ऐसे कैसे, इतनी मसावात कैसे आई तेरे अंदर, मुझे ये बता दे भाई, इतना तू मीजान तेरे अंदर कैसे है, तवाजुन, बैलेंस, लिब्रा कैसे है भाई, तू दोनों को इक्वल दे रहा है, वाह।
अच्छा, कह रहे ऑब्वियस सोल्यूशन ये था कि मैं दूसरी को बताता कि ओ आप थोड़ा सा लेट हो गई, पहले से यहाँ पे सवारी चढ़ी हुई थी, आपको दिख नहीं रही थी, हैं सुजुकी में पहली माल लौटता मेरी, आपको पता ही नहीं चला, आप पैसेंजर बन के आप बैठ बैठ गई। वही ना, कॉन्ट्रेरी टू माई एक्सपेक्टेशन शी चोज टू कंटिन्यू टू टॉकिंग टू मी, तो उनको टॉकिंग ही चाहिए थी आपसे। फ्रेंड जोन किया फिर भी मान गई, बता दिया दूसरी है फिर भी मान गई, फिर बोला नहीं दूसरी बार बताया कि जी मैं कोई फ्यूचर नहीं है फिर भी मान गई, अब बताया कि लड़की है वो फिर भी मान गई। उसको टॉकिंग ही चाहिए आपसे। अब अल्लाह जाने और क्या लेना देना चल रहा हो मुझे नहीं पता, मैं आई एम नॉट जजिंग, वो आपका अपना मामला है ना। बोथ ऑफ देम नो अबाउट ईच अदर। यार ये चीज तो हमें आप गाइड करें, दोनों को पता है बोथ आर ओके। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो लॉन्ग डिस्टेंस में है फिर उन्होंने भी किसी को ढूंढ लिया हो, ऐसा तो नहीं है कोई, मतलब ओपन रिलेशनशिप वाला मामला अगर है तो गुड फॉर यू, वट एवर मेक्स यू गाइज हैप्पी। मैं तो किसी को जज नहीं करता भाई। तो वो कैसे खुश है यार, ये बड़ा यार आपने इंटरेस्टिंग दिया। तो संक कॉस्ट फैलेसी, अंग्रेजी पूरी आ गई भाई। अब इसमें मैं क्या बोलूं भाई, यू कैन नॉट मैरी बोथ। वो मुर्शिद है ना यार, वो क्या नाम है उनका, तारिक मसूद साहब, वो तो कहते हैं एक साथ 4 करा दूंगा मैं, तो 2 कर लो। वो कह रहे हैं मैं खुद देखा पढ़ाऊंगा, कल ही मैं उनकी वीडियो देख रहा था, इंटरेस्टिंग बात है। तो यार उनसे मेरा एक सवाल है, उनकी टीम वाले अक्सर देखते हैं मेरी वीडियोस, वो जो कह रहे हैं कि 4 निकाह में एक साथ करा दूंगा, तो उस रात सुहागरात किसके साथ है ये तो बताया ही नहीं उन्होंने। उस रात क्या है फिर, कौन से हकीम के पास जाना है, मतलब 4 है भाई, 4 तो बंदा फड्डे में नहीं लड़ सकता, ये तो फिर ये तो और ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी है भाई। वो उन्होंने नहीं बताया उस वीडियो में। या उनसे कभी मिलूंगा मैं, उनसे मैं यही पूछूंगा भाई कौन से हकीम है आपके पास। खैर भाई, मैरी बोथ नहीं कर सकते तो फिर ये चल क्या रहा है, किसका टाइम ज़ाया हो रहा है, क्या नहीं हो रहा भाई, मैं इस पर क्या गाइड करूँ आपको यार। अब असूलन तो यही है भाई, जो पहले थी राइट तो उनका बनता है भाई, राइट और रॉन्ग की बात ही नहीं है, जहाँ पे दिल हो वो है। अब जो पहले आ गई वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब ये कोई कॉर्पोरेट डिस्कशन तो नहीं हो रही, ठीक है ना। अब अगर आपका दिल, आपने लिखा है दोनों से मैं इक्वली प्यार करता हूँ, अभी इक्वली का तो मैं क्या जवाब दूँ, मैं इक्वली का तो कोई जवाब ही नहीं है। असूलन उनका बनता है टाइम ज़्यादा, लेकिन अब ये भी है कि भाई अपना दिल भी देखना है, जहाँ दिल ज़्यादा हो फिर आप वहाँ पे मूव कर जाएं। क्या बोलूँ उसमें मैं यार, या फिर कोई तीसरी का वेट कर ले, फिर देखते हैं और बात कहाँ जाती है, फिर देखते हैं कि 33.33% दे रहे हो या क्या दे रहे हो, है ऐसा कर लो। अबे भाई मैं खड़ा हुआ था, लड़की आ गई, पता नहीं कहाँ से आ गई भाई। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, उल्टा सवाल है हाउ, कैसे कर रहे हो, हमें भी सिखाओ। हम भी लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, इंसान की भी और भी नीड्स होती हैं, इमोशनल वगैरह वगैरह वगैरह, तो हम भी फिर किस तरह मनाएं अपनी बीवी को, आप हमें आके ये सिखाएं। भाई एड्रेस दे दे इसको, इसको ईमेल करके एड्रेस, भाई आ जाना कल, क्या खाएगा भाई तू, चाट पापड़ी जो भी है हैं, ले आना दोनों को। फिर मैं बैठा होगा, बोलूँगा मैं तो यार, बेगम पूछेगी भाई ये क्या, बोलो मैं तो बैठा काम कर रहा था, पता नहीं कहाँ से आ गए डॉक्टर साहब, हाउस जॉब करते करते मेरे हाउस में ही आ गए हैं। मैं भी ये बोल दूंगा मुझे पता ही नहीं चला कहाँ से आ गए। जबरदस्त, बहुत टाइट दिया है, बहुत टाइट दिया। अच्छा कुछ ना लड़कियां या तो वो इतनी सादी होती हैं या वो बन रही होती हैं कि वो मान जाती हैं, हमारी बेगम तो कभी ना माने, तो घुस के फड़ जाए, वो तो कभी ना माने कि मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था पता नहीं कहाँ से आ गई है, हाँ 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 ओके हाँ हो जाता है ना ऐसे। ये वाली भी होती है भाई, पता नहीं कहाँ होती है। खैर तो भाई सवाल तो मेरे पास जवाब कोई नहीं है, उल्टे सवाल है कि यार ये हमें भी सिखाएं ताकि और भी लोग मुस्तफ़ीद हो। इतने सारे लोग बैठे, यहाँ तो एक को नहीं मिल रही, तुम 2 लेके बैठे हुए हो, है ये भाई ख़त्म करो, ये गलत, ये नाइंसाफ़ी है। मलिर 15 के लड़के ऐसे ही बाल गोल्डन करके घूम रहे हैं, पूरी पूरी रात शायर फैल में मछली बन के बाइक चला रहे हैं, उनको कोई नहीं मिल रही, तू 2 रख के बैठा हुआ है भाई, ये तो नाइंसाफ़ी है। खैर भाई ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेने को तो मैं 1 घंटा ले लूँ तेरी, और
अभी अजान हो रही है, चलो फिर बंद करते हैं इंशाल्लाह। अभी अपलोड भी करनी है, 6 तो अभी बज गए। मैं 9 बजे तक हो जाएगी रेडी, घंटा रेडी नहीं होगी, मर जाऊंगा मैं अगर तूने कर दी रेडी, छलांग मार लूंगा मैं, ट्रांसप्लांट करा के फिर गंजा हो जाऊंगा मैं, ये भी नहीं बोल सकता गंजा हो जाऊंगा। कर ही ना दे तू 3 घंटे में रेडी, चल जल्दी कर। ओके भाई, फिर मिलते हैं दोबारा, पेट्रोल पे जरूर सपोर्ट कीजिएगा। और कहा सुना माफ, मस्ती मजाक कर रहे हैं वैसी। और अगेन डिस्क्लेमर शुरू में मैंने आपको दे दिया था, दीज आर जस्ट माई पर्सनल ओपिनियंस, नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइस, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। सो या फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब मत भूलना, सब्सक्राइब। ओके बाय।